ICSC Mathematics Class 10 Chapter 12 Exercise 12D। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द एरिया ऑफ मॉडल्स और मैप्स। देखिए, इन जनरल इफ ए गिवन फिगर is enlarged by a scale factor k, the resulting figure, the image, is a figure which is similar to the given figure or pre-image or object, and its sides are k times as long as those of the given figure. Second point is the distance between the two image points is k times the distance between their pre-image point, and the area of the image is k square times the area of pre-image. The volume of the image is k cube times that of the pre-image. Suppose a model or map of a plane figure is drawn to a scale of 1:p. Then the scale factor will be k, that will be equal to 1 upon p. The length of model on map is equal to k into the length of the actual figure. Area of the model or map is equal to k square, the area of the actual figure. Volume of the model k cube into volume of the actual figure. ये फार्मूले जो भी हैं इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 12D में। जो 12D का क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 11 तक, इसको 1 by 1 करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the square with the side 3 centimeter is drawn anywhere in the plane, which is then enlarged about any point in the plane with the scale factor 2. What is the area of the image of the square? अब देखिए यहाँ पर प्री इमेज दिया हुआ है, that is, a square is there 3 centimeter whose sides are 3 centimeter. It has been enlarged by the scale factor k is equal to 2. Find the area of the image. हमें एरिया ऑफ द इमेज निकालना है। प्री इमेज का साइड दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, उसका एरिया निकाल लिया। एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि साइड जो है 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इनलास्ट, अब एरिया है तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्केल फैक्टर कितना है के इज इक्वल टू 2, सो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. सो द एरिया ऑफ द इमेज विल बी 9 इंटू 4, दैट इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2. A triangle whose sides are 12 centimeter square, a triangle whose area is 12 square centimeter is transformed under the enlargement about a point in space if the area of its image is 108 square centimeter. Find the scale factor of the enlargement. देखिए यहाँ प्री इमेज दिया हुआ है, एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्केल फैक्टर कितना है के। अब एरिया है इसलिए हम के स्क्वायर किया। हमें मालूम नहीं, हमें ये मालूम है कि एरिया जो है इमेज का वो 108 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, 12 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. So k square will be equal to 108 divided by 12, that is equal to 9. So k square is equal to 9, therefore the k is equal to 3. So
Scale factor K is 3. This will be the answer. Question number 3. A triangle ABC with the side AB is equal to 10 centimeter, BC is equal to 12 centimeter, and AC is equal to 16 centimeter is enlarged to the triangle A dash, B dash, C dash such that the largest side of the triangle A dash, B dash, C dash is 24 centimeter. Find the scale enlargement factor and use it to find the length of the other sides of the image triangle A dash, B dash, C dash. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में स्केल फैक्टर हमें पता करना है. अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर. अब लार्जेस्ट साइड यहाँ पर AC है. अब लार्जेस्ट साइड का यहाँ पर जब इमेज बनाया गया है A डैश, C डैश, वो दे दिया है 24. तो जब साइड का होगा तो 16 इंटू के स्केल फैक्टर. देखिए 16 इंटू के इज इक्वल टू 24. K will be equal to 24 divided by 16. That will be equal to 3 by 2. So K is equal to 3 by 2. Now therefore we have to find out the A dash, B dash. A dash, B dash will be equal to 10 into 3 by 2. The 2 5 are 10, 5 3 are 15, 15 centimeter. B dash, C dash. यहाँ पर देखिए BC कितना है 12. 12 into 3 by 2. That is equal to 2 4 2 6 12 और 6 3 18. So 18 centimeter. A dash, C dash को देखते हैं, चेक करते हैं जरा. 16 into 3 by 2. So 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 24 सेंटीमीटर है. तो हमने स्केल फैक्टर की मदद से सभी साइड्स को निकाल लिया. Let us proceed to the question number 4. A triangle PQR, right angle at Q, has PQ is equal to 8 centimeter and QR is equal to 15 centimeter. It is enlarged to a triangle P dash, Q dash, R dash such that the image of P is P dash, image of Q is Q dash, image of R is R dash, and the length P dash R dash is equal to 42.5 centimeter. Find the scale, that is the enlargement factor. अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है PQR. Q पर है 90 डिग्री कहेंगे. PQ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. PR दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. हमें QR दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. हमें PR नहीं मालूम है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फार्मूला तो आप लोग को मालूम होगा. वो क्या है, देखिए यहाँ पर इवन नंबर है तो 2m इज इक्वल टू 8. तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4. 2m इज इक्वल टू 8 तो m इज इक्वल टू 4. अब 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 16. 16 में 1 प्लस कीजिएगा तो 17 आ जाएगा. 16 में 1 माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा. तो हमारे को 15 और 8 तो दिया हुआ है, 17 निकालना है. तो आप या तो पाइथागोरस थ्योरम का दूसरा फार्मूला है लेग का, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. इस तरह से कर लीजिए. लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट का मैंने आसान तरीका भी बताया है. यदि आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए, मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है. तो अभी भी यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं. 8 है, इवन नंबर है, दैट इज 2m इज इक्वल टू 8, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4. अब 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में 1 माइनस किया, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 15, m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17. So in this way you can easily find out the 3 sides of the right angle triangle. Now scale factor हमारे को दिया हुआ है P dash R dash that is 42.5 सेंटीमीटर.
With the help of this, we have to find out the scale factor k. Now, you see the 17 into 17k is equal to 42.5. So k is equal to 425 divided by 170. मैंने एक डेसिमल को हटाया और नीचे एक जीरो कर दिया, तो ये 170 होगा. सॉल्व किया, 5/2 आया, दैट विल बी 2 and 1/2, और यू कैन से 2.5. सो आपका k इज इक्वल टू 2.5 हो गया. अब हम पी क्यू कितना है यहाँ पर 8. तो 8 को 8 इंटू 5/2 है k. तो 8 इंटू k, that will be equal to 20 centimeter. It will be answer first. QR, that is 15 into 2.5. देखिए अपने कन्वीनियंट के अनुसार मैं कभी 5/2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी 2.5. हमने इसमें क्या किया, 15 इंटू 2.5 किया, यहाँ पर 5/2 किया, क्योंकि 8 से 2 आसानी से कट जा रहा था. 37.5 सेंटीमीटर इसका आ गया. एरिया ऑफ PQR that is equal to 1/2 into product of the leg. Leg means base into perpendicular, that is 1/2 into 8 into 15, that will be 60 square centimeter. Area of P dash, Q dash, R dash will be equal to, अब देखिए हमारे को K क्या है 5/2, तो K स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2. और 60 क्या है, एरिया ऑफ द प्री इमेज. तो प्री इमेज का एरिया में K स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 60 इंटू K स्क्वायर, दैट इज 5/2 इंटू 5/2. हमने सॉल्व किया, 2 इंटू 2 4, 15 4 जा 60, दैट इज 15 इंटू 25, that is 375 centimeter square. This will be the answer of question number 4. Now proceed to the question number 5. On a map scale 1 centimeter to 1 kilometer, an island has an area of 3.5 square centimeter. Find the actual area. अब देखिए यहाँ पर स्केल दिया हुआ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर. इस 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर. 1000 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदली किया तो 1 लाख सेंटीमीटर आ गया. अब इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, स्केल को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को RF से भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1:P. अभी आपने पढ़ा था बुक में 1:1 लाख. सो स्केल फैक्टर हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/1 लाख, दैट इज 1/10⁵. एंड आइलैंड हैज एरिया ऑन मैप इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया जो है 3.5 सेंटीमीटर एरिया, ये मैप के ऊपर है. हमें एक्चुअल एरिया ऑफ आइलैंड निकालना है. तो क्या करेंगे, 3.5 अपॉन K स्क्वायर, 3.5 इन अपॉन K स्क्वायर. K स्क्वायर क्या है, K स्क्वायर है 1/10⁵. सो 1/10⁵, 1/10⁵ डिनोमिनेटर में है. अब इसको हमने करके होल स्क्वायर किया है 3.5. अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁵ इंटू होल ⁵2 है, तो 10⁻10 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए इधर अभी स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁴ से डिवाइड कर दीजिए आप, ये स्क्वायर मीटर में आ गया. और स्क्वायर किलोमीटर में बदली करना है तो 10⁻6 से डिवाइड कीजिए. तो हमने दोनों को एक साथ ही किया है. देखिए 10⁻10 है, 10⁻4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर को हमने 100 इंटू 100 को 10⁻4 से रिप्रेजेंट किया. 1000 इंटू 1000 को 10⁻6 से रिप्रेजेंट किया.
अब ये दोनों देखिए 4 और 6 प्लस हो जाएगा तो इतना आगे दोनों कट जाएगा। देखिए मैंने काट दिया है 3.5, यहाँ पर 10⁻10 10⁻10 इंटू 3.5 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। मीन्स एक्चुअल ग्राउंड पर उस आइलैंड का एरिया जो होगा 3.5 स्क्वायर किलोमीटर होगा। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6. The scale of a map is 5 meter to 1 centimeter. फर्स्ट क्या निकालना है? What area in square meter is represented by the square of the side 3 centimeter on the map. सेकेंड है what is the length of the sides of the square on the map which represent the area 50,625 स्क्वायर मीटर। चलिए स्केल 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर दिया हुआ है। इस 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। जब हम आरएफ निकालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में करते हैं, तो सेंटीमीटर ऊपर भी नीचे भी होता है, वो कैंसिल हो जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, वो कैंसिल हो गया। सो स्केल फैक्टर इज, स्केल फैक्टर क्या हो गया? अभी आपने अपने बुक में पढ़ा था कि 1/p, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 1/500। सो k इज इक्वल टू 1/500। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है। कहाँ पर है? मैप पर। इसका एरिया कितना हो जाएगा मैप पर? 3 इंटू 3 दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्चुअल एरिया कैसे निकलेगा? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। व्हाट इज के स्क्वायर? दैट इज 1/500। मैंने लिखा है 1/500 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में डाल करके। जब ये 500 को करेंगे तो 500 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 9 9 रह जाएगा। तो 9 इंटू 25 इंटू 10⁻4 हो गया। इसको सॉल्व किया हमने कैसे? ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदली करने के लिए हमने क्या किया? स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर में बदली करने के लिए हमने 100 इंटू 100 से डिवाइड किया है। जैसे ही डिवाइड किया है, ये 4 जीरो ऊपर का, नीचे 4 जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? 225 स्क्वायर मीटर। दिस विल बी द फर्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ एरिया ऑन द ग्राउंड इज गिवन, दैट इज 50,625 स्क्वायर मीटर. लेट अस फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. इसका जो साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन द ग्राउंड होगा वो होगा 225 इंटू 225 स्क्वायर मीटर, या इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो वो आएगा 225. अब द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन मैप. लेंथ निकालना है तो हमें मालूम है कि इसका लेंथ कितना है साइड का? 225. 225 को ये देखिए मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने क्योंकि हमारा जो ये स्केल है सेंटीमीटर से तैयार किया गया है. सो 225 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई 500, दैट विल बी इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर मैंने एक्चुअल साइड, ये एक्चुअल साइड है 225 इंटू के. के क्या है? 1/500. हमने 1/500 से कर दिया, लेकिन ध्यान देना है कि एक्चुअल साइड जो है दैट शुड बी आल्सो इन सेंटीमीटर. सो 225 इंटू 100 होल इंटू 1/500.
इसी को सॉल्व करके लिख दिया 45 सेंटीमीटर। तो मैप पर कितना होगा, वो एक साइड जो होगा उसका 45 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, a ground plan of a house is made on the scale 1 centimeter to 15 meter. Find the scale factor of the plan. Find the length and breadth of the plan of the room 18 meter by 12 meter. What area on the ground is represented by 1 square centimeter on the plan? देखिए स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर टू 15 मीटर। 15 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, पहले सेंटीमीटर में, तो 1500 1500। अब हमने इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1:P, दैट इज इक्वल टू 1:1500। तो स्केल फैक्टर क्या हो गया, 1/P। आपने अपने बुक में ही पढ़ा, अभी दिखाया था मैं। स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू क्या होगा, 1/P, दैट इज इक्वल टू P यहाँ पर क्या है 1500, 1/1500 लिख दिया। ग्राउंड पर इसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ, 18 मीटर लेंथ है, 12 मीटर ब्रेड्थ है। मैप पर इसको वर्कआउट करना हमारे को, तो 12 देखिए 12 मीटर इसका ब्रेड्थ है, तो 12 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया पहले। 1200 इंटू 1/1500, 1/1500 और 1500, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 0.8 सेंटीमीटर। लेंथ के लिए ये 18 है, तो 1800 हो गया सेंटीमीटर इंटू 1/1500। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, आपको 1.2 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। अच्छा, मैप से एरिया दिया हुआ है, मैप एरिया क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे को ग्राउंड एरिया निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या है, मैप पर क्या है, इसके एरिया कितना है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो K स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/K²। तो हमने K स्क्वायर को कर दिया, K इज इक्वल टू क्या है 1/1500, इसका होल स्क्वायर किया मैंने। अब जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 तो नीचे रह जाएगा और 1500 ऊपर चला जाएगा। 2 बार किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो 1/1 इंटू 1500 इंटू 1500 होल डिवाइडेड बाई, अभी इसको मैं पहले तो सेंटीमीटर में था, स्क्वायर सेंटीमीटर में, इसको मैंने मीटर बनाने के लिए हमने 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए तो यहाँ पर 2 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 0 यहाँ से कैंसिल। नो 15 इंटू 15 225 स्क्वायर मीटर आपका आंसर होगा, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्केल एरिया, मैप एरिया, दैट इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैप पर है तो ज़मीन पर कितना होगा 225 स्क्वायर मीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 पूरा किया।